Hey guys, and welcome to Nerdcast, where we nerd out about various topics. Today we are going to get a bit serious about mental health. So the first thing that comes up here onto your mind is stress in mental health. So what stress is? It is a feeling of physical or emotional tension in your body, and it can be triggered by any frustration, any anger. So there are two types of anger, two types of stress, basically acute stress and chronic stress. Acute is basically what you get in a short time, like maybe you're about to see something from a height or something, and chronic stress might be a long term stress, like money issues, or you're not getting married or something. That might be a chronic stress. So what experience did you guys have about stress? So the main experience that I would say was 2 years of preparation that went into for JE, because those 2 years are like one of the toughest for me, considering the amount of like tension and stress that it gave. Because they were like from weekly examinations to like mock tests and everything, and then trying to cope up with all of that. My classes used to end at 12 a.m. at night. So, like spending around 12 to 18 hours a day studying just for that one examination that you don't know whether on that day it might be fruitful or not. So, it was really like that was one of the most hectic, stressful moments of my life, I would say. What about you, Mm, Pranis? for me, same as Guru, uh, but he started for 2 years, right? मेरा ऐसा था कि मेरे को लेटर मेरे को बाद में पता चला कि लाइक जे जैसा कुछ एग्ज़ाम होने वाला है, बिकॉज हमारे टाइम वो कंपलसरी था. सो मेरे पास था 1 महीना, तो मैंने एकदम दिन रात एक करके पढ़ा. मैं एक एंग्जाइटी वगैरह नहीं थी, बट थोड़ा सा मैंने ज़्यादा स्ट्रेस लिया उसके बारे में. इट्स नॉट लाइक कि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से हो रहा था, बट इफ़ आई हैड लाइक एक मन पढ़ाई करके जेई दिया है. सो बेसिकली उसका जो मैं 16-16 घंटे पढ़ता था, उसका नतीजा है चश्मा लग गया स्ट्रेस के कारण, बाकी कुछ नहीं. क्योंकि तब ये नहीं सोचा था कि वो एग्ज़ाम क्या इम्पैक्ट था उसका, क्या नहीं होगा. एंड बाद में जो फेज़ आया वो जीआरई के टाइम था. जब मेरा फर्स्ट जीआरई हुआ था, तो मेरा स्कोर 294 आया था आउट ऑफ 340. तो एंड उसके बाद कॉन्फिडेंस डाउन नहीं था, उसके साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए एंड ऑल दैट, बट सेकंड टाइम भी रीअपियर किया तो सेम ही स्कोर आया. तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेस आने लगा. फिर बिकॉज मेरा एकदम ऐसा हिल गया, सिस्टम हिल गया पूरा, तो मैं घर पे आ गया. इट्स लाइक आई हैड इनफ, आई नीड ब्रेक फ्रॉम ऑल दिस. थोड़ा सा रिलैक्स होना है, क्योंकि जो वो 3-4 महीने निकाले एकदम पढ़ाई कर करके वो थोड़ा ब्रेक चाहिए था उससे. So So another point of chat जो मैं बोलूँगा that was like my college days, because being extremely hard of hearing मेरे लिए सबसे बड़ी point होता था कि classes में because of the auditorium like environment, it was almost impossible for me to understand what the teachers are saying. तो मेरे लिए for the past 2 years जब से मैंने classes मतलब classes attend करी है जितनी भी मैंने college में, none of them I just attended just for the sake of attendance, because class में सुनाई देना तो it was impossible for me. तो आई वुड डिपेंड, तो उस टाइम पे टू कोप, बिकॉज बाकियों को तो सुनाई दे रहा है, तो बाकियों को क्लास सिर्फ अटेंड करने से जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है मेरे को वो नहीं मिल पा रही थी. तो आई गॉट बिहाइंड द कर्व इन दैट वे. वो तो ये था कि लक था कि मेरे को एक डिफरेंट फील्ड मिल गई जहाँ पर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था, एंड आई वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन अटेंडिंग एनी क्लासेस फॉर दैट. तो इसलिए मैं कोप अप कर लिया. बट हैड दैट नॉट बी द थिंग एंड हैड आई बीन स्टिल इंटरेस्टेड इन कोडिंग, तो आज हो सकता है आई वुड स्टिल बी इंटरेस्ट अबाउट इट कि मैं अपने आप को उस क्वालिटी में नहीं ला पा रहा जस्ट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर्स आर सेइंग. So okay. that was a big point of check for So me. basically, interest plays a huge role in studies, basically studies and stress. Hmm. जैसे इवन मेरा भी था, मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया है, एंड दैट टाइम इतना स्ट्रेस था, बिकॉज इवन मुझे मुझे कोडिंग अच्छे से आता था, बट इतना स्ट्रेस था एग्जाम के टाइम पे. सो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत था, थियरी कुछ नहीं जमता था.
एंड दैट्स व्हेन स्ट्रेस स्टार्टेड। और एंजाइटी का इश्यूज तो पहले से ही था, उसकी वजह से और एनहांस हुआ था। बेसिकली व्हेन आई शिफ्टेड टू साइकोलॉजी, तो तभी मुझे समझा कि मेरा इंटरेस्ट यही है। एंड उसके बाद स्ट्रेस लेना शायद से कम हो गया, बिकॉज whenever I didn't even study, तभी भी मुझे अच्छे मार्क्स आते थे। एंड यही एक अलग टाइप का ये कि अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो स्ट्रेस नहीं आता शायद से। इफ यू आर इनटू इट, इफ यू रियली वांट इट, तो स्ट्रेस आना बहुत कम चांसेस है वहां पे। ऑब्वियसली एग्जाम का स्ट्रेस तो सबको होता है कि एग्जाम में कैसे स्कोर करेंगे एंड ऑल, बट आई गेस दैट्स इट। तो अगर जैसे अभी गुरु, जैसे यू आर इनटू मार्केटिंग एंड सेल्स एंड स्टफ, तो अगर तू नेक्स्ट टाइम जब भी ये एग्जाम्स देगा, तो तभी इतना स्ट्रेस नहीं आएगा कि नहीं अच्छा आएगा ये एग्जैक्टली। करना तो है। लाइक अभी आई एम preparing for CAT एग्जाम, एंड आई ऑनेस्टली एम नॉट दैट स्ट्रेस्ड आउट। लाइक मैं मॉक Yeah. टेस्ट दे रहा हूँ डेली, मैं अपनी प्रिपरेशन कांस्टेंट रख रहा हूँ, बट जितना मैंने अपने आप को जेई के टाइम पे हो गया या कॉलेज टाइम पे जो मैं टेस्ट देता हूँ, लाइक आई एम रियली रिलैक्स, और मैं रिलैक्स वे में कर रहा हूँ, जस्ट गिविंग माई सेल्फ एनफ ऑफ रेस्ट। मैं लाइक मेरी नींद पूरी हो रही है, मेरा लाइक एक फ्री टाइम जो है मेरे को आराम से अपने आप को दे रहा हूँ। अभी ये पॉडकास्ट भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आई एम गिविंग एनफ टाइम टू एवरीथिंग। अगर इंटरेस्ट है किसी फील्ड में, तो लाइक अगर तुम परफॉर्म नहीं भी करते हो, यू नो दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ अबाउट इट, तो अभी नहीं तो चलो बाद में परफॉर्म हो जाएगा। इट्स लाइक नॉट वरीड अबाउट इट। सी दिस हैपेंड विथ मी ऑल्सो, ठीक है, ये जो बोल रहा है, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस लिया था, इंजीनियरिंग का। द मोस्ट इंटरेस्टेड पार्ट अबाउट कंप्यूटर साइंस वाज फॉर मी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एंड उसके बारे में मेरे सिलेबस में कुछ भी नहीं था। और सिर्फ एक एल्गोरिदम था क्लस्टरिंग का, एक या दो एल्गोरिदम थे, विच वर लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। एंड क्या बोलूँ अभी मैं उसको, वो ना एग्जाम को आए ना कुछ आए। बट जो जब मैंने मेरा जीआरई वगैरह का सब फिनिश हो गया, मैं घर पे आ गया, मैंने मशीन लर्निंग का कोर्स किया स्टैनफोर्ड का। उसमें मेरे को इतना नॉलेज आया मशीन लर्निंग का, अल्गोरिदम्स, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, ये सब मैंने खुद से सॉल्व किए, इक्वेशन पता चले, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें बाकी क्या होती है। और जैसा वो इंटरेस्ट डेवलप होता है ना, तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है। Yeah. एंड इट्स लाइक सब जैसा इन्होंने वो दोनों ने बोला कि इंटरेस्ट तुम्हारा क्या है फिगर आउट करो। बिकॉज या अपने को टाइम लगता है, बिकॉज इंडिया में कैसा एजुकेशन सिस्टम अभी चेंज हुआ है थोड़ा सा, वो बोल रहे हैं कि सेमेस्टर चेंज वाइज हो रहा करने है, या वाले, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले हमको लैंग्वेजेस थे, मैथ साइंस, लैंग्वेजेस मैथ साइंस, ऐसा रहता था। तो इंटरेस्ट डेवलप करो तुम्हारा, क्योंकि Yeah. किसी को पता नहीं होता, अगर तुम वो ट्राई नहीं करोगे तुमको नहीं पता चलेगा। अभी जब मैं वो कोर्स कर रहा था, अभी मैंने कोर्सेरा पे एक और कोर्स को अप्लाई किया फाइनेंशियल एड के लिए, मुझे वो कोर्स भी मिला। उसका मैंने फर्स्ट वीक का जब किया कोर्सेरा का, न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में कोर्स है, तो उसमें एक बंदे का इंटरव्यू है 40 मिनट का, गॉडफादर ऑफ मशीन लर्निंग करके एंड्रू एनजी उसका इंटरव्यू लेता है। तो वो बंदे ने लिटरली 8 फील्ड्स ट्राई की, जियोलॉजी, जियोग्राफी। देन उसके बाद वो उसके 30s या 40s में वो कंप्यूटर साइंस पे आया, तब उसने फिगर आउट किया कि ये मशीन लर्निंग भी है। तो जब वो 40 का हुआ, उसको पता चला कि यार ये मेरा इंटरेस्ट है, मैंने इसमें करना चाहिए। एंड इट वाजंट लेट फॉर हिम, उसने बहुत सारे पेपर पब्लिश किए हैं, उसकी वजह से आज मशीन लर्निंग है। बिकॉज एंड इवन यही पे, सो दिस इज अ ग्रेट पॉइंट कि एज डजंट मैटर रियली। ये बेसिकली जैसे प्रणीत को आया था कि ही नोज कि क्या चाहिए उसको। गुरु एंड मी डिडंट नो कि मुझे क्या चाहिए, एंड वी ट्राइड इट आउट एंड फिर फिगर आउट हुआ कि ये है। सो बेसिकली एज डजंट मैटर इन नोइंग योर पैशन, नोइंग व्हाट यू आर गुड एट। सो बेसिकली इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आपको इंडिया में ही मिलेगा। There's a comedian called अतुल खत्री, जो पहले से ही पहले कंप्यूटर का एक कंपनी चलाता था। He was CEO of a company, and in his later 40s, I guess 43 या 44 में उसने पहली बार कॉमेडी चालू किया। He tried performing and he was good at it. He found his passion. उसने कंपनी क्विट किया, and the company is still running obviously, but उसने कंपनी क्विट किया, and now he is one of the top comedians in India. एंड उसको पैशन 44 में मिला है, ऐसा नहीं है कि कभी पहले मिला था एंड ही डिडंट ट्राई। सो जब तक लेट्स से ये एंड मिड लाइफ क्राइसिस और मिड लाइफ स्ट्रेस का जो यही पॉइंट है
कि आपको एक जॉब में बहुत बोर हो जाता है बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू इट। एग्जैक्टली एंड सी, हाँ इसका एक वही एग्जांपल दूंगा जो आकाश ने दिया है। हाँ मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे फोर्स किए जॉब के लिए जाने, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सबको जॉब मिला, जो भी मेरे प्रोजेक्ट ग्रुप में थे सबको जॉब मिला, दे वर गुड एट इट। मेरे को भी मिल जाता, बट मैं फ्यूचर प्रूफिंग के लिए सोच रहा था कि यार अगर मुझे मशीन लर्निंग में जाना है तो, और इंडिया में मशीन लर्निंग बेस्ड के लाइक 2 या 3 कंपनीज है, वो भी बैंगलोर में है, और वो भी शायद IITians को ही लेते। सो आई वाज नॉट एन IITian और मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो मैं अप्लाई करके, तो पहले मुझे वो फील्ड में ग्राइंड करना पड़ेगा। और तुमको लगता है, सी फॉर सम पीपल इट्स लाइक जॉब ही सब कुछ है, ठीक है, तो उसका एक स्ट्रेस रहता है। मेरे दोस्तों के साथ हुआ है ये कि जॉब इंटरव्यूज देने गए, रिजेक्ट हो गए कुछ से, फिर बाद में उनको थोड़ा बताया समझा के हो गया कि फिर वो सिलेक्ट हो गए कंपनी में। मेरा ऐसा था कि यार जॉब करूंगा, पैसा वगैरह मैटर नहीं करता, बट द थिंग इज पैशन मैटर करता है। अगर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही जाना है एट द एंड, तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करके क्या ही कर लूंगा। उसका बेसिक नॉलेज होके एक, ठीक है, प्रोजेक्ट वगैरह में हो जाता है बेसिक नॉलेज का, बट उसमें जाके मैं 2 साल उधर जाऊंगा, 2 साल ग्राइंड करूंगा, और उसमें उसके बाद इंटरेस्ट सी, मतलब उसके बाद अगर इंटरेस्ट चला जाता है और फिर मुझे फील्ड शिफ्ट करना है, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत होगा, मुश्किल होगी, बिल्कुल बहुत मुश्किल होगा। इससे अच्छा यू शुड टेक योर टाइम। और मैं थोड़े दिन से घर पे बैठा हूँ, मुझे घर वाले भी कुछ नहीं बोलते, बिकॉज अभी मैंने हायर एजुकेशन का सोचा है कि लाइक यार इधर तो कुछ नहीं, पर दूसरे देशों में तो है मशीन लर्निंग का कुछ, तो उधर चांसेस ट्राई करने में फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इट्स नॉट लाइक कि मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि यार मतलब कंप्यूटर साइंस ले तू, डेटा साइंस मत ले, बिकॉज डेटा साइंस में मशीन लर्निंग का पार्ट ज़्यादा आता है, एंड कंप्यूटर साइंस में एक स्पेसिफिक कोर्स होता है मशीन लर्निंग का एक सेमेस्टर में। या तो वो बोला कि तू कंप्यूटर साइंस ले, तेरे जॉब्स के फील्ड ओपन रहेंगे। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एनी जॉब्स एंड ऑल दैट, मुझे बस सीखना है उसको। अगर मैं मेरा स्किल एनहांस करता हूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगा, उसका डर नहीं। एग्जैक्टली, या इवन इफ माय फील्ड इज क्लोज्ड, लाइक उसने मुझे एग्जांपल दिया था कि खुद का फील्ड ओपन रखना चाहिए, लाइक कंप्यूटर साइंस है तो तू किसी भी फील्ड में जा सकता है, लाइक डेटा एनालाइजिंग वगैरह वगैरह ऑल दैट। बट अगर मुझे सब बोरिंग लगता है बाकी चीज़ें, मैंने बहुत सारी चीज़ें स्कूल के कोर्सेज में थे, ये सब बिजनेस एनालिटिक्स एंड ऑल दैट, ये सब मुझे बोरिंग लगा, इसीलिए फिर मैं एट द एंड मशीन लर्निंग पे शिफ्ट हो गया। नोइंग अबाउट इट कि बेसिकली क्या करना है, या आगे मतलब लायक बनो, जैसे 3 इडियट्स में बताया था, लायक बनो जॉब के लिए नहीं, लायक बनो बस अपने लिए। नॉलेज गेन करो। ऐसा नहीं है कि मैं अभी ना आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, या मतलब आई एम नोबडी इन दैट फील्ड। मुझे उसमें भी पसंद है एंड मैं उसमें भी क्यूरियोसिटी रखता हूँ। वैसे ही फोटोग्राफी में रखता हूँ, वीडियोग्राफी में रखता हूँ। एंड इट्स नॉट लाइक कि एक ही चीज में ट्राई करना चाहिए। लेट्स से मुझे कल अगर मुझे नहीं लगा कि मुझे मैं साइकोलॉजिस्ट इतना अच्छा नहीं बन पाऊंगा, फिर भी मेरे पास ऑप्शंस है बहुत कुछ करने के लिए, और मेरा इंटरेस्ट है वहां पे। एंड सबका एक ही इंटरेस्ट नहीं रहता, वैसे भी बहुत सारे इंटरेस्ट रहते हैं। यू जस्ट नीड टू फिगर आउट क्या है। एंड ऐसा नहीं है कि यू हैव टू फिगर इट आउट व्हाइल यू आर 20-22। यू कैन फिगर इट आउट टिल 40-50, रिटायर होने के बाद फिगर आउट कर सकते हो, एंड दैट विल मेक यू हैप्पी। एंड ऑल्सो हम कुछ पढ़ भी रहे हैं, इफ यू आर लर्निंग थ्रू समथिंग, इवन इफ यू आर नॉट अप्लाइंग दैट इन आवर लाइफ, डजंट मीन दैट वो चीज वेस्ट जा रही है। बिकॉज एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी कि सिंस आई एम इनटू मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, तो इज माय बीटेक वेस्ट? तो मैंने बोला नहीं, बिकॉज द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव लर्नड अबाउट द टेक इंडस्ट्री इन दैट वाइल, लाइक मेरे को जो नॉलेज उधर से मिली, एंड इफ आई अप्लाई माई मार्केटिंग प्रोवेस, तो टेक इंडस्ट्री के अंदर मार्केटिंग भी तो है। तो I found a niche where I would be strong in. तो अब किसी भी टेक बेस्ड कंपनी में मार्केटिंग हेड बनना would be something मेरे लिए परफेक्ट चांस पॉइंट होंगे वो। सी एग्जैक्टली, ये जो गुरु ने पॉइंट बोला है अभी, जो उसमें बोलता है वो कि तुम अगर कुछ सीखने रहे, यू गाइस ऑलरेडी हैव सॉ दिस मीम, लाइक इंटीग्रेशन डेरिवेशन हमने कभी किया नहीं, हमको क्या ही काम आएगा। अभी द मैटर ऑफ फैक्ट कि मुझे वो एक्चुअली काम में आएगा, बिकॉज मेरे मशीन लर्निंग के इक्वेशन ही डेरिवेशन, पार्शियल डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, समेशंस, ये सब पे चलता है वो। तो मैं अगर मेरा 11th-12th में डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग था, तो मुझे अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बट अगर कोई बंदा जिसने उसको सीरियसली ही नहीं लिया और उसको मशीन लर्निंग में जाना है,
तो उसको वो फिर से स्टार्ट करना स्टार्ट पड़ेगा करना पड़ेगा exactly. Exactly. एंड दैट इज लर्निंग इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन टाइम लगता है वो प्रैक्टिस हम्म, लगता है And उसको इसमें ही टाइम भी और नहीं लगता stress है प्रैक्टिस आएगा. लगता है यस like मैं एक एग्जांपल और दूंगा तो आई वाज रियली चेक्ड आउट अबाउट माय बीटेक प्रोजेक्ट. तो द थिंग इज मेरे को बीटेक प्रोजेक्ट अलॉट टू अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग व्हिच इज द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग एंड मेरे को ABCD नहीं मालूम बिकॉज द थिंग इज मशीन लर्निंग का मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया अभी तक कॉलेज में एंड द अदर थिंग इज कि मशीन लर्निंग इज मोस्टली प्रोग्राम्ड इन पाइथन. मैंने पाइथन का बिल्कुल काम नहीं किया. नॉर्मली मेरे कॉलेज में जितने प्रोजेक्ट चल रहे थे पाइथन में चल रहे थे. आई वाज रियली वरीड कि मेरे को जो भी काम मिलेगा प्रोजेक्ट में आई वोंट बी एबल टू हैंडल इट. बट द थिंग इज आई बेसिकली कॉन्टेक्टेड माय सुपरवाइजर जो भी प्रोफेसर है and I contacted him. I sent him my resume and I told him, look, मेरी फील्ड मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिटिक्स है. इट्स नॉट कोडिंग. मेरे को ऐसा काम दे दो जो रिसर्च ओरिएंटेड होगा. तो ही बेसिकली डिसाइडेड कि एक काम करते देन ही सेंड मी रिसर्च पेपर्स अ लॉट लाइक अ फ्यू रिसर्च पेपर्स कि स्टडी देम वर्क ऑन देम एंड मेक रिपोर्ट्स ऑन दी रिसर्च पेपर्स. दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर अस टू रिप्रेजेंट दी रिपोर्ट्स एंड यू नो मेक हमारे पास एक आउटपुट होगा कि सारे रिसर्च का डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं है. Some actual decent student had made reports on the research paper. अब वो स्टडी करने में शुरू में मुझे घबराहट हो रही थी. I just contacted Pranit and he told me if you have any problem then tell me. बात ये कि मैंने पढ़ने की कोशिश की and I basically enjoyed it all because it was again research it again my chance. मेरे को कुछ भी रिसर्च करने को बोलो I would happily do that research work. But हाँ कोडिंग का काम दोगे I won't be able to do it because मेरी चांस नहीं है and I don't even want to do it. एक चाहत होती है तो बात अलग होती है. तो रिसर्च की चाहत थी मैंने कर लिया. तो फाइंड योर वे अराउंड और हर चीज में इवन अगर पॉसिबल नहीं है तो भी कुछ ना कुछ निकल आता है जो तेरे चेंज से रिलेटेड हो. लाइक मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को वो प्रोजेक्ट ढंग का दे पाएंगे बिकॉज आई एम अ मार्केटिंग गाय बट दे स्टिल फाउंड समथिंग फॉर मी. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. पॉसिबिलिटीज आर एवरीवेयर. ये जो गुरु ने मुझे बोला था ना मुझे पता था कि वो जब मैंने वो पेपर्स पढ़े NLP के मुझे समझ गया था कि वो कर लेगा कि बिकॉज इजी. मैं सोचा था कि मैंने भी रिपोर्ट बना के रखा था एक पेपर का. मैंने सोचा था कि अगर ये आखिरी दिन पे कांटेक्ट करता है इससे नहीं हो रहा है तो इसको भेज दूंगा मैं एक का. उसको डेट वगैरह पूछ लिया था. बट ऐसा है कि यू शुड स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ और लोगों का मत सुनो बिकॉज सबसे ज्यादा स्ट्रेस उधर से आता है कि यार ये क्या बोलेगा. We have discussed exactly this in the podcast on peer pressure. Thank you for tuning in. We will continue the discussion on mental health in the next episode.